The Liberation of the Spirit, Synthesis of Yoga, page 679. The liberation from ego, the liberation from desire together found the central spiritual freedom. The sense, the idea, the experience that I am a separately self-existent being in the universe, and the forming of consciousness and force of being into the mold of that experience are the root of all suffering, ignorance, and evil. And it is so because that falsifies, both in practice and in cognition, the whole real truth of things. It limits the being, limits the consciousness, limits the power of our being, limits the bliss of being. This limitation again produces a wrong way of existence, wrong way of consciousness, wrong way of using the power of our being and consciousness, and wrong, perverse, and contrary forms of the delight of existence. The soul, limited in being and self-isolated in its environment, feels itself no longer in unity and harmony with itself, with God, with the universe, with all around it, but rather it finds itself at odds with the universe, in conflict and disaccord with other beings who are in other selves, but whom it treats as non-self. And so long as this disaccord and disagreement last, it cannot possess its world, and it cannot enjoy the universal life, but is full of unease, fear, afflictions of all kinds, in a painful struggle to preserve and increase itself and possess its surroundings. For to possess its world is the nature of infinite spirit and the necessary urge in all beings. The satisfactions it gets from this labor and effort are of a stinted, perverse, and unsatisfying kind, for the one real satisfaction it has is that of growth, of an increasing return towards itself, of some realization of accord and harmony, of successful self-creation and self-realization. But the little of these things that it can achieve on the basis of ego consciousness is always limited, insecure, imperfect, transitory. It is at war too with its own self. First, because since it is no longer in possession of the central harmonizing truth of its being, it cannot properly control its natural members or accord their tendencies, powers, and demands. It has not the secret of harmony because it has not the secret of its own unity and self-possession. And secondly, not being in possession of its higher self. It has to struggle towards that, is not allowed to be at peace till it is in possession of its own true highest being. All this means that it is not at one with God, for to be at one with God is to be at one with oneself, at one with the universe, and at one with all beings.
This oneness is the secret of a right and a divine existence. This oneness is the secret of a right and divine existence, but the ego cannot have it because it is in its very nature separative, and because even with regard to ourselves, to our own psychological existence, it is a false center of unity, for it tries to find the unity of our being in an identification with the shifting mental, vital, physical personality, not with the eternal self of our true existence. Only in the spiritual self can we possess the true unity, for there the individual enlarges to his own total being and finds himself one with the universal existence and with the transcending divinity. जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें पूरा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो हमने लास्ट टाइम लिया था, जैसे if somebody was to ask what is the state of mankind, है ना, मतलब that is an perfect all encompassing action like answer to that question कि हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, मतलब dissatisfaction, conflict, we can Absolutely. see our limitations and yet we are so much identified with it. ये जो आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी करके है ना, श्री अरबिंदो का आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, तो उसमें यही चीज बताई गई है, जो जस्ट लाइक यू नोटिस्ड, यू नो, दैट दिस इज एक्चुअली अवर कंडीशन. मतलब फैमिली पे कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर नेशन लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टेट लेवल पे मतलब है ना, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट हर जगह, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट. तो he has actually shared that without each of us uniting with our true consciousness, we cannot have global unity, human unity. It is not possible. यही रहेगा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यही रहेगा. मतलब क्योंकि वही जो हम बात करते हैं ना, एज लॉन्ग एज वी आर दिस ईगो, it's like a byproduct of it that you can't help but be at conflict with somebody or something. कुछ होंगे जो मेरे प्यारे होंगे, अपने होंगे, कुछ होंगे जो मेरे एनिमीज होंगे, सो कॉल्ड, मतलब आई वोंट लेबल देम एज एनिमीज, बट वही डिसलाइकिंग, लाइकिंग, प्रेफरेंसेस, नॉन प्रेफरेंस, ना उसी में फंसा, वही चक्की चलती चक्की देख के दिया कबीरा, वही वी कांट हेल्प इट. ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ईगो बन के जी भी रहे हैं और इट्स अ हार्मोनियस यूनिफाइड लाइफ. But again and again, it is, I don't know, there's no point of that, but it's a bit surprising that how did we get this far? Like, and then just looking at oneself. कि, और इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद, है ना, इतने स्क्रिप्चर्स हैं, इतने वेद हैं. आई थिंक वही जो हम बार बार बात करते हैं ना, मतलब दिस मस्ट बी अवर, दिस जो ब्लाइंडनेस है, इट दिस द कर्टन ऑफ ब्लाइंडनेस दैट वी हैव, कि इतना सब कुछ सामने होते हुए भी देयर इज, वी कैन यू नो इग्नोर इट, नॉट फॉर वंस बट फॉर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन वी कैन इग्नोर इट. क्योंकि वही फॉरगेटफुलनेस जो है, कि इनेट फॉरगेटफुलनेस है, भूल जाते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट हो जाता है.
और तभी फिर रिमेम्बरेंस की बात आती है कि क्योंकि भूल जाते हैं तो इसलिए सुमिरन करो, याद रखो कि तुम करने क्या आए हो। क्योंकि भूलना तो एज अ फैक्ट है, मतलब द मोमेंट वन, जैसे कहते हैं ना कि सोल, एज इफ मदर सेज, है ना, कहीं आपने सुना होगा, मदर सेज दैट एज इफ सोल फॉल्स ऑन इट्स हेड एंड देयर इज अ फॉरगेटफुलनेस, समथिंग लाइक हम्म, दैट पिक्चर क्रिएट्स मदर। हम्म। तो उसमें तो कोई हमारे पास चारा नहीं है, मतलब यही है कि बस बार बार रिमाइंड कराते रहो। तभी सत्संगत की वैल्यू बोलते हैं कि ऐसी संगति जो बार बार आपको याद दिलाए, चाहे किताबें हैं चाहे कुछ भी है। Where they, when we were talking about say the different yugas, है ना, त्रेता। सत्युग, त्रेता एंड ऑल। हम्म। जैसे त्रेता में आप रामायण की बात कर रहे थे, हम्म। अब उसमें भी डिस्कॉर्ड दिखता है ना, मतलब हम्म। हार्मनी भी है और डिस्कॉर्ड भी है। हम्म। हम्म। मतलब जैसे अब हम ये बात करते हैं कि पहले जैसे गुरुकुल्स होते थे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन द ब्रिटिश केम और अब सारा जंग हो गया है। हम्म। बट ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन जनरल, है ना, वो फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन सी वो काफी परसिस्टेंट हैं। मे बी हम्म। हम्म। देयर वाज मोर हार्मनी टू, हम्म। and the conflicts were also, या you know, always there, irrespective of the education system, no? एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द युगास आल्सो, है हाँ, ना। हाँ, हाँ, या हाँ, ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, आई थिंक वो देखो ना, जो स्टोरी ऑफ, मुझे मुझे लगता है बार बार जब मैं स्टोरी ऑफ क्रिएशन पे जाती हूँ तो मेरे लिए वो क्लैरिटी देता है, क्योंकि हम्म, उल्टा ही है सारा मामला। हम्म, सब कुछ yeah, उल्टा ही है। जो दैवीय शक्ति हम्म, थी वो आसुरिक हो गई है। हम्म, तो वही जैसे हम बुद्धिज्म में बोल देते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स हम्म, बट हम्म, सफरिंग फ्रॉम हम्म, दिस वर्ल्ड, है ना। yeah, क्योंकि सब उल्टा हुआ पड़ा है। और मदर yeah, एक्चुअली में, एक वो लर्निंग फ्रॉम द मदर है ना वो वाली बुक, उसमें मदर ने, मतलब इन वन ऑफ द क्लासेस मदर, somebody asked what is our task here to do, what are we supposed to do, and she हम्म, listed these 12 things. You know, she said that our task is to change darkness to light, हम्म, change हम्म, falsehood to truth, हम्म, change suffering to bliss। तो ये हमारा काम ही है। और हम्म, मतलब मजे की बात ये है कि हम पूरी एजुकेशन, मतलब ये मेरे को सबसे बड़ा धक्का लगा 14 साल की एजुकेशन के बाद, कि मतलब ठीक है मैंने पढ़ लिए सारे सब्जेक्ट्स, बट ये, मतलब मैं करूं क्या इस ह्यूमन जन्म हम्म, का, मैं क्या करूं, मतलब क्या करने आई हूं मैं। तो मेरे को ज्यूरिक में मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि 14 ईयर्स की पढ़ाई, मेरे को तो कुछ भी तो नहीं याद। ज्योग्राफी भी पढ़ी, हिस्ट्री भी पढ़ी, मेरे को तो अगर याद भी हो तो उसका मैं क्या करूं, अचार डालूं, क्या करूं, हम्म, है ना। मेरे अभी की जो मेरी स्टेट है उसमें क्या हेल्प करेगा मेरी। हम्म, दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड सीकिंग सीकिंग सीकिंग, कि कहाँ हम्म, मिलेगा, मतलब व्हाट इज रियली दैट वी आर हियर फॉर। हम्म, पूरी एजुकेशन हो गई, हमें बताया ही नहीं किसी ने, भैया एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हारा ये काम है। तो अगर, हम्म, मतलब आप देखो ना कितना ये पर्सपेक्टिव चेंज करता है, कि अगर मेरे को बचपन से ये कल्टीवेशन है, और हम्म, कोई मान लो मेरे पास बच्चा रोता रोता आए, या मैं रो रही हूँ, है ना, कि मेरे साथ ये हुआ, तो भैया यही तो होना है, अब तू क्या करेगा, अब हम्म, तेरा एटीट्यूड क्या है। हम्म, 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 तो ये ऐसा लगता है कि हमको ठूस ठूस के अपने अंदर जैसे घुसाना है, कि याद दिलाना है बार बार कि ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो जैसे ही डिसअपॉइंटमेंट मिले तो फिर डिसअपॉइंटमेंट से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, क्योंकि फिर तो एक मेरा काम है। अब एक स्वीपर है तो उसको कचड़े से डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी ना होगी, उसको पता है कचड़ा देखना तो मेरा रोज का काम है। हम्म, सो दिस, आई थिंक दिस एस्पेक्ट इज रियली वेरी मच लैकिंग। अच्छा मान लो स्कूल सिस्टम में लैकिंग है, हम्म, तो अगर हमें, अगर धीरे धीरे इसकी वैल्यू पता लग रही है, तो हम घर पे तो कर सकते हैं, है ना, मतलब वी कैन डिस्कस दिस विद आवर किड्स, एंड डे टू डे प्रैक्टिस बननी चाहिए ये। वाई टू पुट एवरीथिंग ऑन द स्कूल्स, कि स्कूल नहीं कर रहे, आधा टाइम तो बच्चा घर पे होता है। हम्म,
नहीं, by schools or education system basically, see, like you said कि it's like a person falls on their head, है ना? हम्म कोई हेड पे गिरा and they lost what they were. तो जो आसपास खड़े हैं वो बताएंगे ना कि क्या है, वो या फिर उनको देखेगा, या उनको फॉलो करेगा या उनकी सुनेगा। या तो जब सभी सर पे गिरे हुए हैं हाँ और वही ही डायरेक्ट हाँ कर रहे हैं, हाँ तो वो एक वो हो जाती है ना कि जहां भी देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ, हाँ। जहां भी सुन रहा हूँ वही नहीं सुन रहा मतलब हूँ। मैं इस बात को समझ हम्म, रही हूँ कि हम्म, ये कलेक्टिव का बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है विच वी कांट हेल्प। मतलब इट वन हम्म, हैज टू गो थ्रू दैट ब्लाइंडनेस इन द कलेक्टिव, बट there can be a sanctuary of light, say for example in the house. हम्म। Why not? हाँ, मतलब नहीं, बट है उसके ना। लिए वही सेल्फ कैपेबिलिटी, जैसे हाँ हमारा कैपेबिलिटी, व्हेन शी हाँ सेज के, जैसे हम साइकिक एजुकेशन में व्हेन वी वर रीडिंग, अगर तुम कर पाओगे तभी तो तुम आगे डायरेक्ट बिल्कुल करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ फिर या अपनी ही अनकैपेसिटी हाँ भी दिखती है उसमें, हाँ या फिर शॉर्टकमिंग्स और ये या सब ना। या हम्म, और मैंने ये देखा है, मैंने मतलब इफ आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड माई सेल्फ अगेन एंड अगेन and I know that I forget, and yet I am trying as best as I can to remind myself to keep up with whatever little I can read, है ना, daily whatever little I can write. So why not those of us who are growing around us, why not they also can be part of that? हम्म, मतलब किसने बोला है कि एक छोटा बच्चा जो 7 या 8 साल का, मदर के वर्ड्स में अब जैसे है ना, देर आर मेनी मेनी रीडिंग्स दैट वी कैन पिक अप विच लिटिल हम्म, चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड। हम्म, जब वो फिक्शनल स्टोरीज पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, 7 8 9 वट एवर एज है ना, वहां पे इतनी हम्म, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है धीरे धीरे। मदर की काफी चीजें हैं जो हम लेके, मतलब इट कैन एंड मस्ट, आई वुड से मस्ट बिकम पार्ट ऑफ हम्म, अवर लाइफ। हम्म, क्योंकि बाहर डार्कनेस को आप नहीं रोक सकते, आप वही जो बात करते हैं ना कि डार्कनेस को नहीं रोक सकते बट दिया जला सकते हो, हम्म, हम्म, वही वाली हम्म, बात है। हम्म, कम से कम दिया तो रोज जलाते रहो, और दिए में रोज तेल भी डालना होगा, तेल भी डलना जरूरी है। ये नहीं कि एक बार जला के छोड़ दिया दिया, है ना, रोज उस दिए में तेल डालोगे, बत्ती बुझने लग रही है तो फिर उसकी बत्ती लगाओगे बार बार, है ना, वही मेंटेनेंस अपकीप। हम्म, और जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि मेरे बच्चों पे या मेरे ऊपर बाहर का कलेक्टिव का इम्प्रेशन पड़ता है, और जो कि पड़ता है, पड़ेगा ही, वैसे ही जो वो आप घर पे बत्ती जला रहे हो या तेल डाल रहे हो उसका भी तो इम्प्रेशन कुछ ना कुछ तो रहेगा, हम्म, हाउएवर लिटिल। या नहीं, बट जैसे जो एक बेसिक ईगो का वो, जैसे अब इसमें डिस्क्रिप्शन है ना, जैसे हम्म अदर सेल्फ, वी टेक इट एज नॉन सेल्फ, दिस इज हम्म सेल्फ, मतलब वो, या मतलब, या आई थिंक वी कैन जस्ट आई ब्रीद थिंक नाउ। वो है कि देखो, हम्म, इट्स लाइक छोटे छोटे टुकड़ों की बात है। हम्म, अगर उस चीज को अभी नहीं समझा सकते तो कुछ है हम्म, जो हम कर सकते हैं, माना वो नहीं समझा हम्म। सकते, है ना। नहीं, नहीं, मैं तो बच्चों की तो बात ही नहीं कर रही, हाँ मैं हाँ तो खुद की ही बात कर रही हूँ हाँ कि हाउ सम कॉन्सेप्ट्स आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स। हाँ। एंड दैट इज बस। वाई हाँ। अदर हम्म, थिंग्स, जैसे अब मान लो हम्म, मुझे पता है कि राइट नाउ हम्म, आई एम नॉट इन अ स्टेट दैट आई कैन हम्म, रियलाइज द सेल्फलेसनेस हम्म, और सी माई हम्म, सेल्फ हम्म, एज वन हम्म, सेल्फ एज ऑल। ठीक है, हम्म, आई नो हम्म, इट हेयर बट आई डोंट नो इट हेयर, हम्म, है ना, हम्म, प्रैक्टिकल हम्म, रियलाइजेशन नहीं है। हम्म, तो हम्म, बुद्धिज्म क्या कहता है? एथिकल कंडक्ट, हम्म, जेनरोसिटी, हम्म, कंपैशन, वही जो हम बात हम्म, करते हैं ना कि जस्ट हैव अ गुड हार्ट। तो yeah, शुरू तो करे कहीं से, जहां पे इल yeah. फीलिंग आ रही But है जैसे उसको। if one is reading synthesis हाँ from the first chapter, I think maybe or third, मतलब this thing about ego and this thing being the main root cause of this हम्म is there, मतलब it's like the inherent हम्म thing, and yet it feels so far, मतलब it's हम्म surprising कि how it can be so obvious और so, हम्म एक तो हम्म चीज होती है ना, हमें पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, वो देखे कि प्रॉब्लम ऐसे मुंह पे दे दी है कि ये हम्म लो ये है, और हम्म उसके बावजूद भी हम्म। दैट नहीं, थिंग। प्रॉब्लम इज मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है ना। हाँ, हाँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बटन ठीक कर दिया तो बाकी पूरे घर में लाइट आ गई, उस टाइप का है नहीं। yeah, मल्टी yeah, लेयर्ड true, प्रॉब्लम है।
इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। Yeah. और वही मैं बार बार, जैसे हम देखते हैं इतनी मोटी लाइफ डिवाइन, इतनी मोटी सिंथेसिस ऑफ योगा, उस पे भी बात नहीं, एसेज ह्यूमन एंड डिवाइन, उस पे भी बात नहीं, उसके ऊपर भी कंपाइलेशन हो रही है, उस पे भी कमेंट्री हो रही है। तो मतलब मामला घना है, दिखता बेशक सिंपल हो कि अच्छा यही तो करना है है ना, फॉर द पर्पस ऑफ प्ले ओनली, मामला इज कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद जैसे same others said कि you know how the humans were not ready and that is why Sri Aurobindo had to sacrifice himself है ना, so that he जैसे वो यहाँ पे ले आए और फिर then he had to leave his body so that it becomes, but जो हमारी state है to even expect कि we will be ready at that, you know, एक तो होता है कि कोई चांस था और हम नहीं ले पाए, but बट इसे वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सुनो, वो इग्नोरेंस, वो डिजाइन की प्रॉब्लम है। हाँ आई एम जस्ट सेइंग कि फिर when one reads it, it feels कि oh, we were not ready and he had to do it. But when we look around, we're like, कि obviously we were not ready. मतलब I'm just saying, just ट्रू, या या और वो भी, इट्स नॉट दैट वी आर नॉट रेडी राइट नाउ, वी हैव नॉट बीन रेडी फॉर ready. इयर्स। You, हाँ, exactly. Yeah. Mm. A long dim preparation is man's life. Mm. A limping yes, accompanied by eternal no. Mm. Hmm. Yeah. तो ये हमने कर लिया था, द सोल लिमिटेड, है ना, ये तो हो गया था। And so long as this disaccord and disagreement last, it cannot possess its word, it cannot enjoy the universal life, but is full of unease, fear, afflictions of all kinds, in a painful struggle to preserve and increase itself. वही है ना कि क्योंकि मैं सीमित हूँ और लिमिटेड हूँ, तो मुझे बचा के भी रखना है, इतनी घनी इंटेंसिटी से जो मेरे बाहर है उससे अपने आप को बचा के रखना है, प्रिजर्व एंड इंक्रीज। क्योंकि सीमित हूं तो सीमित में खुश तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि सीमित तो हमारा ट्रू नेचर है ही नहीं। तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो एग्रेंडाइज करना चाहेंगे, है ना, जो हम ईगो के थ्रू करना चाहते हैं, सेल्फ एग्रेंडाइजेशन। तो वही है, मतलब अब देखो जो हम बात कर रहे थे ऊपर, मतलब अब इसका हमको एंटीडोट दे दिया है कि अच्छा माना तुम अभी सेल्फ रियलाइजेशन पे नहीं जा सकते, वहां नहीं पहुंच सकते, तो उसका एंटीडोट ले लो। सेल्फ एग्रेंडाइजेशन की जगह क्या करो, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, ऑफर योर सेल्फ समवेयर, सेल्फलेस सर्विस कर लो। वो अलग बात है कि वहां पे भी सेल्फ एग्रेंडाइजेशन हो जाता है हमारा, बट या and possess its surroundings. So it is in a painful struggle to preserve and increase itself and possess its surroundings. For to possess its world is the nature of infinite spirit and the necessary urge in all being. So this we had discussed last time, you know, that how as a spirit there is a memory lurking that I am the king. But how I am the king, wo nahi pata. So ego wants to be the king, but it's actually the spirit who is the king. The satisfaction it gets from this labor and effort are of a stinted, perverse, and unsatisfying kind. For the one real satisfaction it has is that of growth, of an increasing return towards itself, or of some realization of accord and harmony, of successful self creation and self realization. But the little of these things that it can achieve on the basis of ego consciousness is always limited, insecure, imperfect, transitory. ये वही बात हो गई जो हम सेंटर की बात करते हैं ना, कि कोई भी काम चाहे बड़ा है या छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जो मदर भी बात करती है, राइट एटीट्यूड, कौन से सेंटर से हो रहा है वो काम,
तो अगर ईगो सेंटर कर रहा है वो काम तो हमेशा लैक 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 ही रहेगा, चाहे मैं सीईओ हूँ कहीं का या बहुत ज़्यादा काम भी कर लिया, तब भी एक वो लैकिंग 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 है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिसिंग है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिसिंग है. So if it is achieved on the basis of ego consciousness, is always limited, insecure, imperfect and transitory. क्योंकि वो किसने किया? मैंने. और मैं कौन? ये छोटा सा. It is at war too with its own self. Because first, because it, since it is no longer in possession of the central harmonizing truth of its being, its own being, it cannot properly control its natural members or accord their tendencies. So because I'm not fully in conscious union with my spirit, with my soul, so I can't have control over my thoughts, feelings, no control over my body and their tendencies, their powers, their demands. I have no control. Or even if there is a control, it's a very swaying control, which can be swayed at any. It has not the secret of harmony because it has not the secret of its own unity and self-possession. And secondly, not being in possession of its highest self, it has to struggle towards that, is not allowed to be at peace till it is in possession of its own true highest being. So I think this comes actually as a solace कि जब तक हमको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक जो हमारा काम है वो अनडन है, जो अभी भी बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है. तो ऑफन व्हेन वी वंडर कि देयर इज समथिंग व्हिच कीप्स मी डिसकंटेंटेड, डिससैटिस्फाइड, इसका मतलब देयर इज समथिंग स्टिल दैट आई हैव टू claim and achieve and attain, which actually is my birthright. Not allowed to be at peace till it is in possession of its own true highest being. और मतलब मजे की बात ये, हमें इतनी बार तो ये लगता है कि नहीं, मैं अभी शांत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे जिससे शादी करनी थी वो शादी नहीं हुई है ना. कोई कंपेनियन चाहिए था वो नहीं मिला है, जो जॉब चाहिए थी वो नहीं मिला है ना, जिस जगह पे मैं हूँ. आधे टाइम तो मैं यही लगता है कि इसलिए मैं शांत नहीं हूँ. बट उसी के थ्रू आई थिंक हम आगे बढ़ते रहते हैं. फाइनली व्हेन वी हैव प्लेड एनफ विद दोज थिंग्स, actually this also connects with the, say, the psychic coming forward, because one of the signs is an increasing amount of peace in the being. वो जो एक रेस्टलेसनेस होती है ना जिसके साथ हम जीते हैं, दैट काइंड ऑफ गोज अवे. तो मतलब वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप वो नहीं अटेन कर लो जिसके लिए आप पैदा हुए हो. So it is not allowed to be at peace till it is in possession of its own true highest being. मतलब कुछ ना कुछ हमको पीछे से उंगली करता रहेगा. All this means that it is not at one with God. For to be at one with God is to be at one with oneself, at one with the universe, and at one with all beings. आपने वो वाला सुना है, एक तिग्नाथान का है ना, there was a talk, the question asked was, what according to you is God? You remember? अच्छा है वो काफी. Now here he actually talks about this, to be at one with oneself. And when one is one with oneself, actually he says, and मतलब एक बार देखेंगे उसको बाद में, at one can be actually one with the universe.
because one is totally here and now, totally here. And at one with all the beings. मतलब किसी भी चीज से भागने की अब वो इच्छा नहीं हो रही, पूरे के पूरे वही हो जो है. This oneness is the secret of a right and divine existence. But the ego cannot have it because it is in its very nature separative, and because even with regard to ourselves, to our own psychological existence, it is a false center of unity. So, as Mother says, Sri Aurobindo shares, ego is a helper, ego is a bar. तो है तो सेंटर ऑफ यूनिटी, है ना, क्योंकि किसके विचार, मेरे विचार, किसकी फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स. बट इट इज अ टेम्पररी सेंटर ऑफ यूनिटी विच वॉज रिक्वायर्ड अंटिल आई एम ripe enough to move towards the psychic. तो इकट्ठा तो किया ही उसने मुझे, है ना, उसने मुझे बताया कि अच्छा समाज को ये चाहिए होगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये कुछ और चाहिए. अ फॉल्स सेंटर ऑफ यूनिटी, or it tries to find the unity of our being in an identification with a shifting mental, vital and physical personality. So विचार, भावनाएं और शरीर सब हैं ऐसे जो चेंज होते रहते हैं, होते रहते हैं. And yet I see myself as this one solid rigid entity, as me, ego. So it tries to find the unity of our being in as an identification with a shifting mental, vital, physical personality, not with the eternal self of our total existence. Only in the spiritual self can we possess the true unity. For there the individual enlarges to his own total being and finds himself one with the universal existence and with the transcending divinity. ये 3 रियलाइजेशन श्री अरबिंदो बताते हैं इंटीग्रल योगा में. एक, द फर्स्ट इज द साइकिक रियलाइजेशन, सेकंड इज दिस रियलाइजेशन, कॉस्मिक रियलाइजेशन बोल लो या जो भी है, यूनिवर्सल. एंड देन ही सेज द ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. साइकिक वाई? बिकॉज इट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट, सबसे करीब है. अब मतलब यही अगर टर्न दिख जाए, जैसे अब ये लाइन पड़ी, ऑल दिस मीन्स दैट इट इज नॉट एट वन विद गॉड, मतलब नॉट एट वन विद वन सेल्फ. बट जब कुछ हैपनिंग हो रही है लाइफ में, to have this turn in our life that whatever happening happens, I take it as कि मेरे को कहाँ ग्रोथ करनी है, यू नो, बिकॉज दिस एंड दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. सो उससे नज़र अगर यहाँ चली जाए कि इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सरेंडर कंप्लीट नहीं है, अभी भी डूअरशिप है, यू नो, ऑल दीज थिंग्स मोस्टली वी बाय डिफॉल्ट तो ये है कि आई विल ट्राई टू ब्लेम द आउटर सिचुएशन, कि इसमें बाहर की जगह, है ना, किसी बंदे में या किसी सिचुएशन में कमी थी. तो अगर ये टर्न पूरा हो जाए, दैट एवरीथिंग वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ, आई टेक इट एज कि अभी मेरी यूनिफिकेशन विद द डिवाइन विद इन पूरी नहीं है. आई एम नॉट वन विद वन सेल्फ. दैट इट सेल्फ इज अ वे फॉरवर्ड.
बुद्धिस्ट वाले जो मैं बता रही थी ना आपको, जो तर्क वितर्क वगैरह है, तो उसमें ये जो है ना शिफ्टिंग मेंटल वाइटल फिजिकल पर्सनालिटी, इसको दे यूज द टर्म एज आवर एग्रीगेट्स, and what they try to say is by tark vitark reasoning that if we try to find a solid self within these aggregates, कि कहाँ है वो solid self जिसको मैं बोलता हूँ मैं, we will actually not be able to find it, और उसको वो लेबल करते हैं अनआत्मन, that there is no solid rigid permanent entity that I call as myself, because all this that I can see and be conscious of, like mind, thoughts and feelings and body, sense perceptions, ये तो सबके हैं, तो वो एग्रीगेट्स तो सबके पास हैं, सो दे कॉल इट कंटेमिनेटेड एग्रीगेट्स, माइंड वाइटल और वही जैसे वृत्तियां होती हैं, संस्कार हैं पुराने जो भी है ना, मैल चढ़ी हुई है, और वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ देम कमिंग टुगेदर in a body which is like seems like collected mass, you know, because of them coming together it gives us a false appearance that there is a solid rigid entity called me, जिसको हम ईगो का नाम देते हैं. So they say that the very fact that I believe in this solid rigid entity called me and I don't question its presence is the cause of my suffering, क्योंकि as long as वो रहेगी उसको फिर मुझे पूरा करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको एग्रेंडाइज करना है. So they say that the root is you realize that there is actually a selflessness. यहाँ पे कुछ नहीं है वो छोटा सा जो मैं मान के बैठी हूँ कि मैं हूँ. So it resonates with actually वो जो भी हम पढ़ रहे थे. अगली जो सेंसेस दी हैं वो स्थूल को ही मानती हैं, है ना, मतलब सेंसेस की परसेप्शन जो है, जैसे अगर दिस डॉग ही कैन परसीव दैट मच, ह्यूमन कैन परसीव, जो दिख रहा है जो सुनाई दे रहा है इतने लिमिट में, कि जो टूल्स दे दिए हैं सुपरफिशली जो हैंडिंग ओवर हो गई है वो उनकी हुई है, जो जिसमें बस एक शरीर दिखता है ना, एक मटेरियल दिखता है, और बोल रहे हैं, बोला जाता है कि इसको यूज करके उधर तक जाओ उधर से जाओ, बट उसकी जो how that aura of that or the bigness of that is so solid. Yeah, yeah. How do I not believe that this Yeah. is separate than this, because I can see this, है ना, I can move, मतलब it's बिल्कुल काफी गोल है उसमें बिल्कुल कि बिल्कुल. हम्म, अब जैसे सावित्री को बोल रहे हैं जब when she is trying to find her soul, cast thought from thee, cast away sense from thee that veils thy spirit sight. तो उसमें आप of course you can question कि भाई दी क्यों थी, जब अभी कह रहे हो कि हटाओ पर्दा, yeah, दिया क्यों पर्दा, बट वही है कि इफ नॉट फॉर द पर्दा देन हाउ वुड द प्ले हैपन, हाउ वुड द, है ना. हम्म, और ऐसा भी नहीं है कि उसको यूज नहीं करना है, उसको रिक्लेम करना है. हम्म, थॉट हैज टू बी इल्यूमाइंड, थॉट हम्म, हैज टू बी इल्यूमिनेटेड, हम्म, फीलिंग्स हैव टू बिकम मोर ब्यूटीफुल व्हाटएवर हार्मोनियस, बट जिस हम्म, तरह की अभी हैं ईगो कॉन्शियसनेस में रहते हुए उसको कास्ट अवे करना पड़ेगा सो दैट द ट्रू लाइट, है ना, उसके साथ एक कांस्टेंट टच बना रहे. मतलब ये नहीं कि वो इतना बड़ा पर्दा है कि मैं कभी हटाऊं ही नहीं, बस उसके अलावा जैसे कुछ है ही नहीं. जैसे वो बोलते हैं ना, फ्रॉम एनिमल मैन हम्म टू बिकम, है ना, सुपर मैन, एज इन बिकॉज अभी भी वो जो एनिमल मैन की वो है, द पकड़. होल, हाँ, पकड़ बहुत ज्यादा है, ऐसा फील होता है या ना, मतलब दैट रिफाइनमेंट इज नॉट देयर ऑफ सेंसेस के, ट्रू. जैसे एक मोटा पत्थर है उसे हम हिट तो कर सकते हैं, बट अभी तक वो उसमें वो नहीं बनी है ना, धार नहीं बनानी बनी है, मतलब दैट वन हैज टू डू वन सेल्फ, ट्रू. राइट, क्योंकि दिस इज अ रॉ, व्हाट डू आई डू विद इट. या या और दिखता भी नहीं है मतलब बिकॉज वी लिव अनकॉन्शियस लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम, वो पहचान नहीं हो पाती. वो जैसे अब माइंड ऑर्गेनाइजर्स, माइंड सॉर्ट्स, है ना,
तो ये काम तो हम करना चाहें तो कर सकते हैं कि अच्छा विच पार्ट ऑफ मी इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल साइड ऑफ मी। तो अगर देखना शुरू करें तो दिखता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता। कि ये मैं जो गुर्राई, ये मैं क्यों गुर्राई। True, true. वही जो श्री अरबिंदो कहते हैं ना, एन ओल्ड सेल्फ लर्क्स स्टिल इन द न्यू सेल्फ दैट वी आर, दैट एनिमल स्टिल लर्क्स इन अस, that stone, that dull gravitation, that inertia, that still lurks. Yeah. इसमें है और कुछ देखो। नकली तो बहुत ही, मतलब यूजुअली समटाइम्स इट्स हियर एंड देयर और थोड़ा ट्विस्टेड है, तो बिल्कुल ही उन्होंने काफी क्लियर सिंपल लैंग्वेजेस में स्मॉल सेंटेंसेस ऑलमोस्ट में बोला हुआ है। Yeah. जो सावित्री वाला है ना, जिसमें वो वाला, सो शी स्टार्ट्स, पहला तो वो है पैरेबल ऑफ द सर्च ऑफ द सोल, फिर सर्च फॉर द सोल, देन एंट्री इनटू इनर कंट्रीज, फिर आई थिंक वो है निर्वाणा एंड द ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट, समथिंग लाइक दैट, एंड देन इट कम्स टू अल्टीमेटली फाइंडिंग ऑफ द सोल। तो उसमें एक पार्ट है जिसमें व्हेन शी इज वेरी क्लोज टू द सोल, वेरी लाइक शी इज जस्ट अबाउट टू रीच, और उसमें वो लाइंस हैं कुछ जिसमें, या उसमें ये बताया हुआ है कि उसमें ना, उसमें वो कोई डिजायर है उस समय, ना कोई एस्पिरेशन है, मतलब इट्स लाइक शी हैज नो स्ट्रेंथ ऑफ हर ओन। एक मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लाइंस हैं, बट उसको बस इतना पता है कि मेरे से ज्यादा कुछ है, मतलब उसका भी रियलाइजेशन नहीं है उसको, बट उसको पता है कि मुझसे ज्यादा कुछ है। ये ब्यूटीफुल है, थोड़ी सी लाइन से देखती हूँ मैं, मिलती है तो। हम्म, हाँ ये वाला, हाँ ये देखो, अब नाउ शी इज ग्रोइंग मच क्लोजर, सो ये क्या है, this inefficient mind gave up its thoughts as she is approaching closer. The striving heart gave up its unavailing hopes. All knowledge failed. How beautiful. मतलब पढ़ पढ़ के जो भी इकट्ठा किया अभी तक ज्ञान, हाँ, all knowledge failed and the ideas forms and wisdom screened in awe her lowly, मतलब सब कुछ नीचे झुक गया है ना, कुछ बड़ा आने वाला है, सब कुछ नीचे, feeling a truth too great for thought or speech. Her mind knelt down before the unknowable. All was abolished save her naked self and the prostrate yearning of her surrendered heart. This was there
रेस्ट एवरीथिंग गॉन. देयर वाज नो स्ट्रेंथ. ये मेरे को काफी स्ट्राइकिंग लगा. देयर वाज नो स्ट्रेंथ इन हर, नो प्राइड ऑफ फोर्स. द लॉफ्टी बर्निंग ऑफ डिजायर हैड sunk, ashamed, a vanity of separate self. तो जब तक सेपरेट सेल्फ रहेगा, ईगो रहेगी, तब तक डिजायर भी रहेगी, है ना. और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, दैट ईगो कैन नॉट हैव दैट. तो वो भी गया, कुछ नहीं बचा. द होप ऑफ स्पिरिचुअल ग्रेटनेस फ्लेड. कि स्पिरिचुअली कोई रियलाइजेशन हो जाए, कुछ मिल जाए, वो भी, जो मांगना 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 वो जो लगा रहता है. Salvation she asked not, nor a heavenly crown. Humility seemed now too proud a state. Herself was nothing, God alone was all. Yet God she knew not, but knew only he was. मतलब अभी रियलाइजेशन भी कंप्लीट नहीं है, बट पता है कि कुछ इससे बड़ा है जो इंतजार कर रहा है. अमेजिंग ना, ये काफी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को लाइन. और फिर when she much goes further, then बीच में emptiness है, darkness है, and then there was felt a blissful nearness to the goal. तो हल्का सा जैसे उसका, जैसे कोई खुशबू वाली चीज के पास जाओ तो खुशबू पहले ही आ जाती है ना. There was felt a blissful nearness to the goal. Air trembled with passion and delight. अब पहले डार्कनेस दिखा रहे थे, अब देखो, द फेस ऑफ डॉन out of mooned twilight grew. Day came, priest of a sacrifice of joy. And अब देखो, उसको याद आ रहा है कि जैसे वही हम बात करते हैं ना, something in us remembers, as if an old remembered dream come true. She recognized in her prophetic mind the imperishable luster of that sky. है ना, वो एकदम से पहचान, वो जो चाइल्ड लुमिनोसिटी, मदर लुमिनोसिटी की बात करते हैं ना. And knew the dwelling of her secret soul. या अच्छा है, ये ब्यूटीफुल है ये लाइंस इसके अंदर. चलो फिर यहाँ पे रोकते हैं. पेज नंबर 680. ऑल द ट्रबल से स्टार्ट करेंगे. ऑल द ट्रबल यहाँ से, ठीक है.